Hi, good morning everybody. Welcome again to DK Study Channel, and today we are going to discuss about new topic, that is parts of speech. So in parts of speech we are going to learn about so many parts are there, altogether 8 parts, that are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, interjection, conjunction, preposition. Now you see noun, pronoun, verb, adverb, adjective, interjection, conjunction, and preposition. So they all are the parts of speech. And you see, when a student is able to know about these 8 parts of speech, merely his grammar is going to be completed, or we can say that he can make a good sentence, or he can be a writer or learner of good English. So from the beginning, today our chapter, or today our whole topics, we will revolve around this noun. So let us take this noun from here. So noun, and today we will discuss about this. What is noun? Noun. So noun is a name of person, animal, place or thing, idea, experience and so on. So नाउन क्या है? नाउन किसी भी चीज का नाम, जो कुछ भी, या पेय पदार्थ हो, या लिक्विड हो, या कोई भी स्टेट में रहे सामान, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं या बुलाते हैं, जिस चीज को, जिस नाम को लेकर के, उसी को नाउन कहा जाता है. सो दिस नाउन आर ऑफ again different types. So let us eliminate your confusion from here. The types of noun again. And today we will study about sectoral wise about this noun. Noun is categorized into again different parts, and so many of us we get confused about this noun, and today we will erase our confusion. So at first we will start from common noun, then proper noun, after abstract noun, likewise common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, compound noun, possessive noun. So they are the different types of noun. At first, what is this common noun? Then proper noun, abstract noun, concrete noun, compound noun, and finally possessive noun. It's not so tough. So be clear with your mind. Come with a fresh mind. Common noun is the common name of person, place, animal or thing or whatever. Now, likewise, boy, village, girl, school. Somebody might be getting confused how this become common noun. Now I will make you easy how this become common noun. So while talking about boy, आप यहाँ से जब बॉय को लेकर के डिस्कस करेंगे, तो बॉय में सबके अलग अलग नाम हैं. जैसे इसमें आ गए
राम, लो, राम, हरि, उसके बाद गीता, सीता। देखिए सिर्फ sorry, not this Gita, because boy is referring to male bodies, so you can write here name of male persons only, मतलब पुरुष जाति को जनाता है, इसलिए आप पुरुष का ही नाम लिखेंगे यहाँ, राम, हरि, श्याम, मोहन। सो दे कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ बॉय, ये सारे लोग बॉयज के कैटेगरीज में आते हैं। फिर आप आओ विलेज, ऐसे आप जहां भी देखे होंगे, एक अपना गांव छोड़ करके कहीं भी जाएंगे, अलग अलग नाम से कई विलेज मिलेंगे, कई गांव मिलेंगे। सो विलेज कहते ही सारे विलेज टुगेदर आ जाते हैं, सारे विलेज एक साथ आ जाते हैं। एंड व्हेन वी सेपरेट देम देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ विलेज, एंड you need to pronounce when you visit from one parts to another parts of this contemporary world. You can find different name of villages. So village is the common name for all those villages where a particular name is village. एक सिंगल नाम लिया जाए तो सबको गांव बोला जाता है, लेकिन सबको डिफरेंटली देखा जाए तो इनके सारे गांवों को अलग अलग, गांव का अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे ही अब आ जाते हैं गर्ल्स में। चलिए अब देख लीजिए गर्ल के लिए, जैसे पहले हम लोग थोड़ा लिखते वक्त कंफ्यूज हो गए थे, अब आइए सीता, गीता, रोहिणी, रूपाली, यू सी दे आर द नेम ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ ये लड़कियों का नाम हो गया, फीमेल नेम। सो दिस मेक्स अस नो दैट गर्ल्स बिकम कॉमन नेम। ये गर्ल जो है कॉमन नेम ऑफ गर्ल्स बिकम्स द कॉमन नेम फॉर सीता also, Gita also, Rohini also, and Rupali also. And when we talk about when we talk about advance in single form, they comes together as a name of girls. इन सारों का अगर नाम एक साथ लिया जाए तो हम लोग गर्ल कह सकते हैं, और डिफरेंटली अलग अलग इनका नाम लिया जाए तो किसी का नाम सीता रहेगा, किसी का नाम गीता रहेगा, किसी का रोहिणी और रूपाली। इस तरह से डिफरेंट नाम हो जाते हैं जो स्पेसिफिक नेम है, इनके पर्सनल नेम है, इनके अपने खुद का नाम है, लेकिन एक साथ में इनका नाम लिया जाए तो हम लोग गर्ल कह करके बुला सकते हैं, या ज्यादा लोग हैं तो इसलिए प्लूरल आएगा, गर्ल्स कह सकते हैं। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉमन नाउन। नाउ लाइकवाइज स्कूल also, there are different school by their different own particular and specific name, but together as a whole either they are the school of Nepal, India, Bangladesh, Pakistan, China, Bhutan, Maldives, Sri Lanka, wherever, but we all call them together at a school where academic educational activities is done। जहां academic educational activities और academic educational activities होते हैं, लर्निंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज जहां होते हैं उनको स्कूल कहा जाता है, और आपको एकेडमिक ईयर एंड पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सो द प्लेस इज कंसिडर्ड एज द स्कूल। आपको एक साल पढ़ करके कुछ सर्टिफिकेट जैसा एक प्रमाण दिया जाता है, देन you consider that place as a school. But when we talk about different school, likewise me myself, I am a teacher of Sunshine Public School. So one Sunshine Public School, जस्ट सामने है रामहर्ष। आफ्टर दैट सेक्रेड हार्ट, ज्ञान भारती, यस ज्ञान भारती,
and so many other names are there. Means all school they have their own different name, but at once when we talk about this we call them as a school. इनके सारे विद्यालयों के नाम अलग अलग हैं। ऐसे देखिए ज्ञान भारती, सेक्रेड हार्ट, राम हार्ट, सनशाइन पब्लिक स्कूल, लिटिल एंजल्स, भगवती इंग्लिश मीडियम स्कूल, so many schools are there, but for this all school we have a single name, that is called school. तो इससे पता चलता है स्कूल कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि इन सब के लिए एक नाम। तो स्कूल को हम कह सकते हैं बाप, और ये सब हो गए इनके बेटे। अब हमें तो लग रहा है you might not have any kinds of confusion related to this common noun, and let us talk about this proper noun today. Again we have next part or next parts of speech, next types of noun, that is proper noun. So dear student, do you know something about proper noun? What is this proper noun? So at first I want to define you, I will make you know about what is this proper noun. ये proper noun होते क्या हैं? So proper noun is proper name of person, proper name of person, animal, place or thing, or you can say that special name, specific name, particular name, उनके अलग अलग पहचान वाले नाम। जैसे स्कूल का ही नाम ले लीजिए तो सनशाइन इंग्लिश, ज्ञान भारती विद्यालय, तो अलग अलग इनके अपने ही पहचान के नाम, अपने ही विद्यालय के खुद की उनकी अपनी पहचान है, उनकी लोगो होंगे, उनका आइडेंटिटी होगा, उनका फिजिकल बनावट होगा। जैसे गर्ल्स को ले लो, आपके क्लास में कोई दिव्या नाम की पढ़ रही होंगी, तो दिव्या नाम की लड़की का खुद का अपना आइडेंटिटी होगा, उसका कलर होगा, उसका हाइट होगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस होगा। चलो राम होंगे, वो रोज विद्यालय लेट आते होंगे, या टाइम से नहीं आते होंगे, या टाइम से पहले आते होंगे, शॉर्ट हाइटेड होंगे, लॉन्ग हाइटेड होंगे, मतलब उनका अलग ही पहचान है, उनका अलग आइडेंटिटी है। सो समथिंग स्पेशलिटीज अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आपके पास कोई एक गाय होगी, वो भी काली गाय होगी, ज्यादा एक चरने वाली गाय होगी या ज्यादा खाने वाली गाय होगी, यस। सो तो वह ब्लैक काऊ जो आपका हो गया, ये ब्लैक काऊ, आपके पास बहुत सारे गाय हैं, लेकिन उनमें से स्पेशल वाली जो है ब्लैक, काली वाली गाय है, तो आप जिसे बहुत पसंद करते हो, ढेर सारा दूध देती है, तो उसका स्पेशल कैरेक्टर बताता है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल नाउन। जैसे राम, श्याम, गीता, हरि, यस, विनोद, लिटिल एंजल्स स्कूल, रामहर्ष सेकेंडरी स्कूल, आफ्टर दैट सनशाइन पब्लिक स्कूल। So this is proper name or special name for particular place, animal, things and so on. So I think you are clear about this proper noun. आपको proper noun के विषय में भी जानकारी मिल गई होगी और आप लोग यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब आते हैं abstract noun। ओ लो, ये क्या आ गया जी abstract noun? abstract noun होता क्या है? What is this abstract noun? Oh my God! But चलिए, इनके कोई फिजिक्स नहीं है, ये इनर कोर्स से आते हैं, एक्सपीरियंस, आपके अनुभव, आपके फीलिंग्स को बताते हैं, जिसे हम ऐसे फिजिकली नहीं देख सकते, ऐसे उनको टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक गुडनेस, गुडनेस। चलिए, गुडनेस क्या होते हैं? गुडनेस को हम महसूस कर सकते हैं, अच्छाई। आप बैडनेस, गुडनेस, बैडनेस, बुराई, अच्छाई आप कहते हो ना, तो गुडनेस और बैडनेस भाव यही तो है, यही तो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब अच्छाई से समझ में आया, ये भी एक नाम दिया जाता है। एक स्वतंत्र आदमी के अंदर
चलो आप उसको देखते ही कह देते हैं हम लोग ही इज गुड। तो ये गुड क्या है, ये बैड क्या है, ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, इनर क्वालिटी है। सो उसके भाव को बताते हैं, उसके अंदर छुपे हुए गुण को बताते हैं। सो दिस गुडनेस, बैडनेस, यस, दिस इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक इट इज क्लियर अबाउट दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब उनके फीलिंग्स, उनके इनर कोर के भाव को जो बताते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कंक्रीट नाउन, व्हाट इज दिस कंक्रीट नाउन? कंक्रीट नाउन मीन्स noun or the name of the things that we can feel by their physics, by their appearance। एक ठोस वस्तु जिनको हम लोग छू करके, देख करके बता सकते हैं ये क्या चीज है। चलिए यहाँ एक रखा हुआ चीज है, सॉरी, इसको हम उठाते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो आप ऐसे अगर आंख बंद करते हैं फिर भी इसको ऐसे टच करके बता सकते हैं ये क्या है। तो एक किताब जैसा दिख रहा है, हो सकता है कवर से किताब लगे फिजिकल अपीयरेंस से, और अंदर कॉपी भी हो सकता है, लेकिन नहीं जी कॉपी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ प्रिंटेड कुछ चीज़ें हैं। तो आप ऐसे इसके अपीयरेंस से इसको टच करके आप बता सकते हो, हाँ इसका कोई शेप है, एक साइज है, और ऊपर कुछ कवर पेज पे कुछ लिखा है। तो देखने से, छूने से आप बता सकते हो ये कौन सा वस्तु है। तो इस वस्तु का जब नाम आप पहचान कर सकते हो तो इसको कह सकते हैं हम कंक्रीट नाउन। अभी हम एक और चीज पढ़ा है, देखिए इसको उठाते हैं तो आप ऐसे आपको दिखाएंगे तो आप कहोगे मोबाइल, लेकिन इसको ऐसे कवर ही दिखाएंगे और आगे से नहीं दिखाएंगे फिर भी आप मोबाइल बोलोगे। जैसे आप पलटाएंगे तो आप कहोगे नहीं ये तो सर कवर था। सो ऐसे इसके शेप, साइज और बनावट से जिसको हम पहचान कर सकते हैं भैया उसी को तो कहते हैं कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं है। तो आप समझ गए यहाँ से कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन डिफरेंट वर्ड से, एक या एक से बढ़कर दो वर्ड या तीन भी वर्ड हो सकते हैं, ऐसे मिल करके जो नाउन बनते हैं उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। मीन्स व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर ब्रॉट टुगेदर टू मेक अ नाउन आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। लाइक blackboard, blackboard, yes, staff room, staff room, okay, blackboard, staff room। तो अब देखिए ब्लैक और बोर्ड, स्टाफ और रूम। अब यहां देखिए राधाल पंडाल, कंपाउंड नाउन। सो फॉर कंपाउंड नाउन स्टाफ एंड रूम, ब्लैक एंड बोर्ड, राधल एंड पंडाल। अब देखिए ये आ गया राधल एंड पंडाल, एक कंपाउंड नाउन नहीं है। कंपाउंड नाउन इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे ही बस बना दिया, ऐसे ही कुछ बना दिया है, तो ये कंपाउंड नाउन नहीं हो सकते हैं। ये कंपाउंड नाउन तब होते हैं जब दो वर्ड्स और दो वर्ड्स ऐसे रहें जिनके मीनिंग्स आते हो दोनों। जैसे स्टाफ मतलब वर्कर्स हो गए और जो भी लोग काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और रूम मतलब कक्ष, उन लोग का रूम, उन लोग का कक्ष। तो स्टाफ और रूम दोनों वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स हैं। सो इट बिकम स्टाफ रूम। हेयर ब्लैक का मीनिंग हमको पता है, मतलब काला रंग। उसके बाद बोर्ड का मतलब जिस पे पढ़ाया जाए, एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कई शेप के बोर्ड बनाए जा सकते हैं। तो ब्लैक काले रंग का बोर्ड जिस पर चाक से लिखा जाता है। तो ऐसे दो वर्ड्स कंबाइंड होकर के, दो वर्ड्स मिल करके बने ऐसे नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। समझ में आ गया होगा। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस स्टाफ रूम, ब्लैकबोर्ड मीन्स हाउ दे बिकम कंपाउंड नाउन।
बट हेयर राधाल पंडाल, इसलिए नहीं है कि राधाल का मीनिंग क्या है और पंडाल का मीनिंग क्या है। लो भैया हमको भी नहीं पता है, बस ऐसे ही हम लिख दिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। दो ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग आते हों, डिफिनिट मीनिंग हो, उनके पर्टिकुलर मीनिंग हो और वो टुगेदर आके एक दूसरा मीनिंग दे दे, इसलिए ऐसे वर्ड्स को कंपाउंड नाउन कहा जाता है। अब आज का हम लोग का लास्ट नाउन का टाइप्स रह गया है, वो है पोजेसिव नाउन। व्हाट डज दिस पोजेसिव मीन? पहले तो आपको बता दूं, पोजेसिव का मतलब होता है, ये बताता है बिलोंगिंग, ये बताता है द ओनर, ये किसका है। जैसे आप कहते हो माइन, माइन, ये माइन वर्ड मतलब मेरा है, ये किससे बिलोंग करता है? मुझसे। हुज, हुज किसका, ये किसका है? हुम, हुम मतलब किसको दिए हैं। जैसे आई गेव माई पेन, यस आई गेव माई पेन हुज हेयर इज शॉर्ट, मतलब मैंने अपना पेन उनको दिया जिनका बाल छोटा छोटा है। तो पोजेसिव उनके बाल और वह, तो वह रिलेटेड हैं, ऐसे वह उस चीज का वह स्वामित्व जनाते हैं, मालिकाना हक जनाते हैं, तो इसी को कहा जाता है पोजेसिव। पोजेसिव मीन्स बिलोंगिंग और ओनरशिप। जैसे दिस फैक्ट्री इज माइन, फैक्ट्री किसका है? तो मेरा है। सो फैक्ट्री, आई एम द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री। सो पोजेसिव नाउन गिव्स अस द आइडिया that belongs to a particular person, place or things. Thank you this much for being connected with this DK Study channel. So once again I want to say about this DK Study channel. Now from today onwards on daily basis be connected with this DK Study channel. आपको ऐसे वीडियोज जो आपका कंफ्यूजन दूर करते रहेंगे, जैसे आज आपको मिला है नाउन पे, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अलग अलग वीडियोज मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, बी कनेक्टेड with this DK Study channel and you will get something more information about this pronoun, verb and other parts of speech. Thank you very much.